today we are beginning with the social issues part of the current affairs. We do not have to deal with them in detail. We just need to have an understanding. We just need to have a broad understanding of what all type of social issues are there in the syllabus. Okay, very good. So let us understand about social issues. Let us understand about social issues. Just give me a minute. I need to switch on the Wi-Fi to दूसरे network. Just give me a minute. So we are dealing with the social issues, and in social issues, we'll only have a brief understanding of what all is going on. Okay. So do not go into those issues in detail. These issues are very important. Understand, these issues are very important, but not from the prelims point of view. From mains point of view, they are very important. You just need to have the conceptual understanding. Okay. Are we clear with this? This is how we'll be reading those. So first, recently Delhi High Court allowed the termination of a pregnancy of a woman who had completed 22 weeks of pregnancy. Now, why it is in news? Because with respect to the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, with respect to the Medical Termination of Pregnancy Act 1971, the pregnancy or the abortion of the pregnancy is regulated in India. It is regulated in India. Now, in India, abortion is not illegal. Be very clear. Abortion is not illegal, but after the period of 20 weeks, it was not allowed in our country because medically it would have caused problems to the child as well as to the mother. It may have even led to the death of the mother. So that is why the High Court has allowed, and at the same time, the Medical Termination of Pregnancy this act is amended. Now, why the word is medical termination of pregnancy? Because it includes the medical involvement, the involvement of the medical practitioner. There are contraceptives which are also available, but those are oral contraceptives, or there are also oral medicines for abortion where the medical practitioner is not necessarily involved during the abortion process. So it is only for those processes which involve medical practitioners. It is not involving only doctors. Understand, it is involving registered medical practitioners. A person who is not having a degree but have practiced medicine for a period of more than 7 years or 10 years, that person is also allowed under this act. Okay. Again, if you see in the rural areas or towns, there are so many clinics where a person is practicing as a doctor, but they are not qualified as doctors under the MBBS degree. They are qualified as RMPs, registered medical practitioners. So they are also allowed under this act. पहली चीज ये समझ लीजिएगा. Otherwise आपसे फिर बोले कि only doctors are allowed. That word they use is registered medical practitioner. ठीक है? समझ में आ रही है पहली चीज? Very good. Now what are the amendments in this act? Now amendments are saying that a pregnancy can be terminated up to 20 weeks by a married woman in case the contraceptives have not worked properly. Up to 20 weeks it is allowed in case the contraceptives has not worked. Now this amendment also allows the unmarried women. Okay? They allow the unmarried women also. Okay? So that if a person is going to the doctor and the person is saying that the person is not married, the doctor cannot deny that. Up to 20 weeks. Okay? Up to 20 weeks. यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब ये दिमाग में क्वेश्चन होगा 20 weeks का होगा, ये पेपर में ये सब नहीं पूछेंगे, ये सब नहीं पूछेंगे. 20 weeks कब से काउंट होंगे? फिर भी फॉर योर नॉलेज, the day the
fetus or the fetus, the egg has fertilized with the sperm, that will be considered as the first day. अब वो नहीं पता होता, डे डॉक्टर्स ही बता पाते हैं, ठीक है। इसीलिए जनरली ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाए कब से काउंट होंगे, ठीक है, कब से काउंट होंगे। ओके, ये चीज समझ में आ रही है? वेरी गुड। When the pregnancy is to be aborted, up to 20 weeks, opinion of one registered medical doctor's opinion, doctor here, person who is practicing a doctor. Sir, voice break. Doctor with a degree, a person who is practicing. वॉइस ब्रेक हो रही, अभी इसी के तो जंग लड़के आए इतनी देर तक, कभी फिर से वॉइस ब्रेक हो रही। एक लॉकडाउन, पिछले कोविड से पहले हमारे पास एक भी वाईफाई नहीं था, हमारे पास दो वाईफाई है। पहले हम मोबाइल नेटवर्क से काम चलाते थे क्योंकि घर पे रहना ही कितना होता था। पहले फिर लॉकडाउन हुआ, फिर पहला वाईफाई लगा, फिर पहले वाईफाई मजा नहीं आया, फिर दूसरा वाईफाई लगा। आज का तो लोग है ना, जैसे 2 सिम जरूरी है ना, एक जियो का तो उसमें होना ही चाहिए, है ना, ये तो कंडीशन है। कोई हमें आईफोन 13 में 2 सिम है कि 1 सिम है? थोड़ा बता दो, मैं आईफोन 13 के बारे में थोड़ा कोई ज्ञान दे दो, किसी को पता हो, कोई किसी को होता है ना, कुछ लोगों को बड़ा शौक होता है सब जानने का, नया जो आया है। हमें कोई ना कंपैरेटिव एनालिसिस बता देना बिटवीन आईफोन 12। सर मतलब इस बार आपके ऊपर हाई प्रेशर है सर, लेने का ही है। हाँ इस बार आपके ऊपर हाई प्रेशर है, लेना ही है। हाँ बहुत ज्यादा, हाँ इस बार लेना ही पड़ेगा, ठीक है, इस बार लेना ही पड़ेगा। हम सोच रहे जितने पैसे बच जाए। है सर, डुअल सिम है उसमें। अच्छा ठीक अच्छा हो सर, उनको मतलब किसी अच्छा हो सर, उनको अरे वर्डू के बारे में नहीं पता है क्या? अच्छा हो सर, उनको वर्डू के बारे में नहीं पता। तुम उनको रुक जाओ। Now let us continue with the medical termination of pregnancy. In this, if the gestation period has crossed 20 weeks, if the gestation period has crossed 20 weeks, it means it is more than 20 weeks, but less than 24. But less than 24 weeks, in that the opinion of 2 RMPs is needed for the termination of pregnancy. Okay, the opinion of 2 RMPs is needed. If the pregnancy has crossed 24 weeks, then the opinion of the state level medical board is needed. State level medical board is needed. If pregnancy has reached 24 weeks, no one will allow the termination of pregnancy because it will be lethal to the mother. ठीक है, मूवीज में आपने देखा होगा ना कि 50-50 chances है, we have to, movies में ऐसा होगा कि we have to abort the child, 50-50 chances है, that is after 24 weeks of pregnancy. So, and why the abortion is allowed? Because it is a choice of a mother or the family, but it should not be at the expense of the life. आपको ये नहीं है कि आप जो है रोड पे खड़े हो जाएं और ट्रेन के सामने, नहीं रोड पे नहीं, मतलब रेलवे ट्रैक पे खड़े हो जाएं और ट्रेन आ रही है और बोल दे मेरी चॉइस है, या तो ट्रेन रुकेगी या हम हटेंगे, तो स्टेट अलाउ नहीं कर सकते ना। Your rights cannot be at the expense of your life because state is there to protect your life but not your any kinds of insanity. State is not there to support your insanity. And इसीलिए 24 वीक्स के बाद तो प्रेगनेंसी अबॉर्ट करना अलाउड ही नहीं है। ये बात ध्यान में रखिएगा, बहुत क्लियरली रखिएगा। इट इज 24 वीक्स। वेरी गुड। एक और बहुत अच्छा सा क्वेश्चन का आंसर बताइए, जो मैटरनिटी लीव फॉर द एम्प्लॉयड वुमेन इज फॉर हाउ मेनी वीक्स? Sir, 12. 12 weeks. Very good. Very good. You know this is a UPSC previous year question. Yes, sir, 2019. Very good.
एक बार क्वेश्चन ही देख लेते हैं, है ना, क्वेश्चन ही देख लेते हैं। और बेटा जिस किताब में 12 वीक्स पढ़ा है ना, अभी चलाओगे क्लास के बाद, ये बताना। बस जिसमें उस तो 12 वीक 24 वीक्स होगा ना? सर 26 वीक है सर, अलाउ किया गया। हम बोल रहे हैं जिस किताब में 12 वीक है वो किताब आज उसको ठिकाने लगा देना, बाकी सब छोड़ो। सर 26 होगा। हाँ 26 है, 12 से बढ़ा दिया गया, ठीक है, 12 से बढ़ा दिया गया है। ये हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें ऑप्शन दिख रहे हैं सर। आई एम शेयरिंग इट विद यू इन द ग्रुप। इसका आंसर बताइए आप लोग। सर 3 ओनली। सर आंसर पता था लेकिन कुछ कंफ्यूजन हो गया था मुझे। हाँ बेटा कोई बात नहीं, अब तो क्लियर हो गया ना। नहीं, एक बुक में अगर Yes, लिखा है sir. तो बुक चेंज कर देना, अगर बुक में सही आंसर है तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए लेट अस सी द क्वेश्चन। Which of the following statement is or are correct regarding Maternity Benefit Amendment Act 2017? Okay. Pregnant women are entitled for 3 months pre-delivery and 3 months post-delivery paid leave. ठीक है। Enterprise with creche must allow the mother minimum 6 creche visits daily. Women with 2 children get reduced entitlements. बताइए क्या आंसर होगा। 3 तो सही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम सपोर्ट करते हैं बच्चे 2 ईयर से, वरना तो एक तो ये तो नेचुरल पास टाइम बन जाएगा 6 मंथ्स की लीव, क्योंकि आफ्टर एवरी 9 मंथ्स विमेन आर बायोलॉजिकली केपेबल ऑफ बियरिंग द नेक्स्ट चाइल्ड। फिर तो इससे अच्छा क्या है, 6 महीने काम करो, 6 महीने छुट्टी। अगर कोई लिमिट नहीं रहेगी तो इट कैन बिकम अ वे ऑफ एक्सप्लॉइटिंग द एम्प्लॉयर और एक्सप्लॉइटिंग द विमेन। सर 2 चिल्ड्रन होगा या मोर देन 2 होगा? टू थर्ड चाइल्ड, मतलब these benefits are only available for two children। इसका मतलब ये नहीं है कि थर्ड चाइल्ड के लिए कोई मैटरनिटी लीव नहीं मिलेगी। फॉर थर्ड चाइल्ड 12 वीक्स होगी, फॉर थर्ड चाइल्ड 12 वीक्स होगी। तो थर्ड तो सही है, तो या तो 3 ओनली हो गया, 1 and 2 होगा। नाउ प्रेग्नेंट वुमेन एंटाइटल्ड फॉर 3 मंथ्स प्री डिलीवरी एंड 3 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी। क्या ये फर्स्ट स्टेटमेंट सही है? अगर ये आप बता देंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। सर फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है, पर क्रैच में सही है सर। 4 विजिट होते हैं सर। नहीं बेटा, फर्स्ट भी गलत है। ये आप मतलब आपके नहीं, जो मदर है उसके ऊपर है ना, उन्हें कब छुट्टी लेनी है। आप मान लीजिए 24 वीक्स तक तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं होती है। 24 वीक्स तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है ना। तो उसके बाद हो सकता है विमेन चाहे 1 महीने पहले से ले सकती है, ठीक है। तो हो सके 1 महीने पहले लेना, बाद में 5 मंथ्स की लेना चाहे, दैट इज देयर चॉइस। जरूरी नहीं है 3 मंथ्स का रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इज रॉन्ग। और मिनिमम 8 घंटे की शिफ्ट होती है, 6 विजिट मिनिमम अलाउ कर दोगे, काम कब करेंगे? 8 घंटे की शिफ्ट होती है, मिनिमम तो 4 विजिट है। मिनिमम 6 है तो मैक्सिमम तो नहीं, मिनिमम 6 नहीं है ना, मिनिमम जो है मिनिमम होगा 3 या 4, ठीक है। तो 6 तो हो ही नहीं सकता, आप खुद ही लॉजिकली सोचिए ना। हर घंटे विजिट करेंगे, 10 मिनट जाने में लगे, 10 मिनट आने में लगे, 20 मिनट वैसे ही चले गए, तो जो है 1 घंटे में आप क्या काम करेंगे?
है ना, तो इसीलिए हाँ, मिनिमम कुछ नहीं है, रोक नहीं सकते कितनी विजिट लेने से, समझिए। मिनिमम का मतलब इतनी बार तो जाना ही पड़ेगा। अब चाहे वो एक दिन में 10 विजिट करे, कोई रोक नहीं सकता। समझ में आ रहा है? मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं है। एम्प्लॉयर ये नहीं बोल सकते कि आप 8 घंटे में से 7.5 घंटे तो अपने बच्चे के पास है, तो कह रहे हमने तो बोला ही था मैं घर रहने दो, क्यों बुलाया? आप ही ने कहा था क्रैच है हमारे यहाँ, आप ही ने तो बोला था हमारे यहाँ क्रैच है, आइए। सिंपल सी बात समझ रहे हैं? तो ये चीजें भी हमें बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्वेश्चन आंसर हो गया। तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब in case the victim is not married or the person is a victim of rape or any other issue, so in this case this is allowed above 20 weeks। ठीक है, 20 to 24 वीक्स में अलाउड होता है। ठीक है, 20 to 24 वीक्स में अलाउड होता है। प्लस द विमेन हुज प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड, कुछ भी डिटेल नहीं देनी है लॉ के हिसाब से। ठीक है, नो डिटेल कैन बी रिवील्ड एक्सेप्ट टू द पर्सन हु इज इन्वॉल्व, यानी कि डॉक्टर को तो बताना ही पड़ेगा। ठीक है, डॉक्टर को तो बताना ही पड़ेगा, उसके अलावा किसी और को नहीं बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? वेरी गुड, एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त क्वेश्चन बताइए। हु ऑल आर, मतलब क्वेश्चन आंसर बताइए, क्वेश्चन तो आप बता दें कि आप ही ने बोल दिया वही सेम है। हु ऑल आर covered for protection under the Domestic Violence Act? Who all are protected under the Domestic Violence Act? ऑप्शंस दे देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस दे देते हैं। The wife of either of the child in the family, the women living as the domestic help in the family, mother of the child or mother of any child within the family, sister or the person having a relation as a sister with the accused। इन सब में कौन कौन अलाउड है बताइए? मतलब वाइफ, डोमेस्टिक हेल्प, सिस्टर, मदर, डॉटर भी। डोमेस्टिक वाला तो फिर उसमें लेबर फोर्स में आ जाएगा ना? वेरी गुड, बहुत सही। वर्क प्लेस हेरेसमेंट में आएगा डोमेस्टिक हेल्प वाला तो। बाकी सब बाकी सब इंक्लूडेड हो गए। ठीक है, वेरी गुड। बस यही क्वेश्चन आ सकता है इसमें। मैरिड विमेन, मदर, डॉटर, सिस्टर, इवन लिव इन पार्टनर्स, they are covered under the domestic। all the females, you may simply understand as all the females which are in relation within the family, which are in the relation within the family। ठीक है, ये मान के चलिए। सर रिलेशन और द पार्ट ऑफ द फैमिली? नहीं, इन रिलेशन भी हो सकता है ना। रिलेशन वाला तो वही होगा। हाँ बेटा, रिलेशन जरूरी नहीं है ना। फैमिली जो है सिर्फ कपल एंड द चिल्ड्रन को माना जाता है इंडिया में, कपल एंड देयर चिल्ड्रन। ठीक है, हो सकता है सिस्टर इन लॉ हो, मदर इन लॉ हो। ठीक है, तो अगर हम सिर्फ फैमिली बोलेंगे तो कुछ नहीं। ये जो भी रिलेशन है, मतलब ऑल द फीमेल्स आर प्रोटेक्टेड, ये आपको पता होना चाहिए। बट मैरिटल रेप इज नॉट पार्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मैरिटल रेप इज एक्सक्लूडेड, क्योंकि इस बार मैरिटल रेप वाज इन न्यूज, इसीलिए क्वेश्चन आ सकता है। सर रेप का तो वो जो अलग ठीक है, चार्जेस क्रिमिनल इसीलिए प्रोसीजर क्वेश्चन के थ्रू लगता है वही लगेगा ना? बेटा मैरिटल लेना,
अभी बिल्कुल ताजा ताजा जजमेंट आया है, ठीक है, ताजा ताजा जजमेंट आया है कि मैरिटल रेप इज नॉट इलीगल इन आवर कंट्री, इट वोंट अमाउंट टू रेप अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। ठीक है, एक बार रीडिंग करिए क्यों आया था, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इफ अ वुमेन इज अ विक्टिम ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, नो वन कैन allowed to take her right to live in a house that does not belong to the husband and belong to the in-laws, be it rented, be it owned। ठीक है, अब ये एक बार रीडिंग लगाइए इसको, आप रीडिंग, हाँ जी सर विडो भी तो कवर होना चाहिए ना सर इसमें। बेटा, हाँ सब विमेन, सब विमेन। अब Sir, विडो का live-in कोई relationship is legal in India. यस, लिव इन रिलेशनशिप आर लीगल इन, लॉ अलाउ करता है, लॉ सर अलाउ करता है, लॉ बट रिलीजन लॉ तो अलाउ नहीं करता ना सर। बेटा रिलीजन लॉ तो चलता ही नहीं, हमारा तो कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। नहीं सर, वो तो मतलब जैसे वो समझ गया मैं, मतलब फिर भी। पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर रहे हैं ना, जी जी। तो पर्सनल लॉ बोर्ड क्रिमिनल ऑफेंसेस की थोड़ी वो करता है, वो सिर्फ पर्सनल सिविल, पर्सनल लॉ इज ओनली लिमिटेड टू सिविल। ये नहीं है मान लीजिए किसी ने अपनी वाइफ की पिटाई कर दी और बोले हमारा रिलीजन तो, कोई भी अगर रिलीजन, हमारा रिलीजन तो 2 चाटे अलाउ करता है, तीसरा चाटा होता तो नहीं हम उसके सर, खिलाफ कुछ कर सकते हैं। लिविंग में सर, लिविंग में। नहीं हम बता रहे, अब मैं बताता हूँ, लिव इन में अगर कोई क्राइम होता है तो वो अलाउड है लॉ के एम्बिट के अंदर, मतलब क्राइम अलाउड नहीं है, उसका जस्टिस अलाउड है। लिव इन में ये नहीं बोलेंगे वो हम तो तुम्हारे पता साथ था। 5 साल, तो वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। मान लो तुम 5 साल लिव इन में हो, वो ये नहीं बोलेगा अब तो तुम्हारी जायदाद में हमारा हिस्सा हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वो सिविल है, क्योंकि वो सिविल है। ठीक है, ये नहीं कि तुमने बाइक बैठ के घूमे तो बाइक पीछे वाली सीट पर नाम लिखा हुआ है दिस सीट बिलोंग्स टू, वो सिविल है। हाँ, लेकिन तुमने अगर गुस्से में बाइक पे उन्हें जो है गिरा दिया, मान लो तुमने जो है व्हीली मार के उन्हें गिरा दिया, उन्होंने बोला तुमने जो है अब्यूज किया है एंड वी आर इन अ लिव इन रिलेशनशिप, तो वो डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर आ जाएगा। अब आप ये मत बोलो कि वो बाइक तो बाहर खड़ी थी तो डोमेस्टिक कैसे हुआ, डोमेस्टिक का मतलब घर नहीं होता, रिलेशन एज अ पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक एरिया। इसका मतलब तो कितना अच्छा है, अगर किसी को वाइफ बैटरिंग करनी हो या कोई भी वायलेंस करना, पार्क में ले गए, आओ पार्क घूमने चलते हैं, है ना। और पार्क में जो है, जैसे आप कुछ पार्क्स में जाते हैं और वहां पे पार्क में देखते हैं ना प्रेमी युगल है, ऐसे शादीशुदा युगल है, क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। तो लॉ बहुत सोच समझ के बनाया गया है, लॉ जो है बहुत सोच समझ के बनाया गया है कि डोमेस्टिक मतलब सिर्फ घर नहीं, घर जैसा जहां पर भी एनवायरमेंट होगा, ठीक है, घर जैसा जहां पर भी एनवायरमेंट होगा दैट विल बी पार्ट ऑफ द डोमेस्टिक रिलेशनशिप। ठीक है, हाँ जी। अगेंस्ट होम किया जा सकता है? अगेंस्ट even the women, against women also it can be there, mother-in-laws, sister-in-laws, particularly तो उन्हीं के होता है, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस मेनली जो यूज होता है ना, इट इज यूज्ड अगेंस्ट इन लॉज। ठीक है, हैव अ रीडिंग ऑफ इट, एक बार आप पढ़ लीजिए, इससे क्वेश्चन बनता है।
हाँ जी, वी हैव गॉन थ्रू इट, कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए, सर यहाँ पे सर प्रोटेक्शन ऑफिसर किया गया, इन सब में किस चीज को बेटा यूज आवाज करेंगे? कट रही है, फिर से बोलो आप। सर सर ये प्रोटेक्शन ऑफिसर वर्ड यूज किया गया है सर, तो हाँ किस चीज को बेटा, include करें? उसमें कोई इन्वेस्टिगेशन, जो ऐसे कोई केस होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है ना, तो उसमें प्रोटेक्शन ऑफिसर है, दैट मींस फ्रॉम द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफिसर जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है। सर एन एनीवन मींस ब्लड रिलेटिव, एनीवन, एनी रिलेटिव, जरूरी नहीं ब्लड रिलेटिव, मतलब घर में सर आप किसी के भी साथ रह रहे हैं, दैट पर्सन। हाँ जी बोलिए। सर इंडिया में तो मतलब बच्चों को मारना इज अ वेरी कॉमन थिंग, तो वो भी इंक्लूडेड होता है इसमें? देखिए, इसमें इंक्लूडेड तब होता है जब आप जो है एक लिमिट के बाद, मतलब आफ्टर 18 तो नहीं कर सकते, आफ्टर 18 नहीं कर सकते। कर तो वैसे बच्चों को मारना, बच्चों को इतना पता होना चाहिए ना डोमेस्टिक वायलेंस। सर बट आई नो अ कपल ऑफ पीपल मेरे साथ में जिनको काफी ज्यादा बुरी तरह से मारा था, मतलब सर्जरी करानी पड़ी थी उनको, घर में ही मारा था। एक्चुअली इशू क्या होता है, इट इज वेरी कॉमन एट वेरियस प्लेसेस, बट पीपल, इट इज मोस्टली डन बाय फादर और ब्रदर। ठीक है, मोस्टली इट इज डन बाय फादर और ब्रदर एंड जनरली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैमिली रिस्पेक्ट पीपल अवॉइड करते हैं, बट इफ दे वांट दे कैन आल्सो टेक द बेनिफिट आउट ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, बट द बॉय इज नॉट प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट। ठीक है, द बॉय इज प्रोटेक्टेड अंडर द एक्ट ऑफ आईपीसी, या तो बी इट अटेम्प्ट टू मर्डर, बी इट कॉजिंग ग्रीवियस हार्म और इंजरी। ठीक है, फॉर दैट देयर इज आईपीसी। ठीक है, शायद नेटवर्क कट गया इनका, कोई नहीं, आगे चलते हैं। नाउ देयर इज अ कोई काउंसिल एज क्रिएटेड लिमिट फॉर, भी है क्या? हाँ जी क्या बोल सर रहे कोई बेटा? एज लिमिट भी है क्या सर, यहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया? बेटा 18, देखो डोमेस्टिक वायलेंस में 18 प्लस इसलिए आता है क्योंकि 18 प्लस से पहले एक ग्रुप होता है दैट इज कॉल्ड एज जुवेनाइल जस्टिस केयर। ठीक है, और चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर्स, बच्चों के लिए वो बनाए गए, ऐसा नहीं प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए वो सब बनाए गए। ठीक है, वो भी पढ़ेंगे आज। हम बोलते ना ये टॉपिक ऐसा है जिसके बारे में जानने की बहुत इच्छा रहती है हम लोगों को, लेकिन प्री के लिए बहुत लिमिटेड पूछा जाता है ना। वेरी गुड, चले आगे। तो एक नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन इज established, National Council for Transgender Person established. Now it is established under the Act, Transgender Persons under Transgender Persons Protection of Rights Act 2019. Now it is established under this Act. इसमें कौन कौन से मेंबर्स होंगे? मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट एज द चेयरपर्सन, Minister of State for Social Justice will be as the vice chairperson, secretary of the Ministry of Social Justice, then one representative from ministries including these. Any members include representatives, any members of states and rotational basis. Council will consist of 5 members from the transgender committees and 5 experts from NGOs. ठीक है, 5 experts from NGOs, है ना, समझ में आया? Now members की टर्म कितनी है? 3 years. The term of the members will be 3 years, and given that they are not ex officio, यानी कि this minister is ex officio, chairperson is ex officio, not 3 years, ex officio not 3 years, secretary ex officio, one representative from the ministries, their term will be 3 years, other members from Niti Aayog and NHRC, their term will be 3 years, representative of 5 states or UTs on rotational basis 3 years term, and 5 transgenders and 5 NGOs 3 years term. Okay, this is how it is established. What are the functions? For advising central government, for monitoring and evaluating the impact of policies and programs, for reviewing and coordinating activities of all departments, for redressing grievances of transgender person, for performing such functions as prescribed by the center.
ठीक है, performing such persons as prescribed by the center. These all are functions that are to be done by the National Council for Transgenders. What are the three provisions? किस लिए है ये? What is the purpose? So as per the act, there should not be any discrimination in these areas. In these areas, which is education, employment, healthcare, all these areas. And as a person living in the society, you know that the transgenders are discriminated at every place. We do not need to determine one place. They are discriminated at every place. Now, who is considered as a transgender? Who is considered as a transgender? ये question आ सकता है prelims में. Who is considered as a transgender? Other gender than men and women. Other gender than men and women. बताओ कौन डिटरमाइन करेगा हु इज अ ट्रांसजेंडर? ये क्वेश्चन आएगा, इसके लिए सब पता होना चाहिए. हु विल डिटरमाइन हु इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसजेंडर? हु इज कंसिडर्ड एज अ ट्रांसजेंडर? सर ट्रांस तो मतलब चेंज किया होता है जेंडर, वो होते हैं ना, तो वो तो मेडिकल प्रोसीजर हुआ. वेरी, लेकिन बताएगा कौन कि ये ट्रांसजेंडर? बताएगा कौन ट्रांसजेंडर? सर इवेल्युएट वगैरह तो डॉक्टर करेंगे, बट जो सर्टिफाइड करता है वो डीएम करते हैं. वेरी गुड, बस ये पता होना चाहिए, यही जानना था. ट्रांसजेंडर की एप्लीकेशन और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी will be given by the district magistrate. It can only be revised if a person has change. Transgender shall have the right to reside in the household. ये right कोई नहीं ले सकता. Educational institutions funded or recognized, they should be providing education, sport, recreation facilities for transgenders without any discrimination. There should be separate measures for HIV surveillance center, medical curriculum related to health issues, medical care, facilities in healthcare hospital, and the insurance. They should be separate measures. Now they also provide recognition of the offenses against the transgender. First, forced or bonded labor, denial of the use of public places, removal from household and village, and physical, sexual, verbal, emotional, and economic abuse. ये सबके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे. ट्रांसजेंडर के रूल्स क्या है? दैट द डीएम विल सर्टिफाई, स्टेट गवर्नमेंट विल कॉन्स्टिट्यूट अ वेलफेयर बोर्ड, रिव्यू ऑफ द एजुकेशनल फैसिलिटीज, स्टेट गवर्नमेंट विल टेक द स्टेप्स टू प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन, द इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी क्रिएटेड रिलेटेड टू द ट्रांसजेंडर्स विद इन 2 years. जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देखें काफी सारी जगहों पे द इंफ्रास्ट्रक्चर दैट वाज डिसेबल्ड, द टॉयलेट्स दैट वर क्रिएटेड फॉर द पीपल पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, नाउ दे आर अवेलेबल फॉर द ट्रांसजेंडर्स आल्सो. They can utilize them. ठीक है? So this is how they are establishing infrastructure. State governments have to set up transgender protection cell to monitor offenses against transgenders. Okay? This is what is in news. Now, recently during the COVID times, you must have seen so many people making appeals regarding the adoption of a child whose parents passed away due to COVID. This is illegal. The adoption procedure can only be followed through 4 agencies. Regarding any information, you have to contact either of these 4 agencies. No one can adopt a child directly. No one can adopt a child directly. First, either you can use the child helpline. Second, the district child welfare committee, the district child protection officer. Fourth, the state commission for protection of child. These are the 4. सर एनजीओस वगैरह में इलीगल होता है? क्या बेटा? एनजीओ से अडॉप्ट करना इलीगल होता है, और एनजीओ से आप डायरेक्टली अडॉप्ट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि बच्चा पसंद आया और घर ले आए. शॉपिंग नहीं है, ठीक है? फिर आप 15 दिन में रिटर्न पॉलिसी भी नहीं है ना? क्योंकि मान लीजिए बच्चा आपने अडॉप्ट किया, मजा नहीं आया,
रिश्तेदार आए, बच्चे ने डांस करके दिखाया ही नहीं, और आपको तो बच्चा इसलिए रिश्तेदार आए और बच्चा जो डांस करके दिखाए, वापस देगा फिर, है ना दिक्कत। तो एनजीओ से अडॉप्ट एनजीओ के थ्रू होते हैं, लेकिन देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट, यही बताना है। इसलिए यूपीएससी, क्योंकि बहुत न्यूज में था, इसलिए यूपीएससी पूछ सकता है इसको। नाउ देयर आर स्पेशल authorities regarding that, that is called as CARA, Central Adoption Resource Authority. It is a statutory body which ensures the legal adoptions in our country. ठीक है, समझ में आया? The country will have the adoption through this authority only. The parents who are giving their child for adoption, they are given 3 months for reconsidering their decision. ठीक है? The child care institutions who are eligible for giving children for adoption, they have to be mandatorily registered under the act within 6 months from the date of commencement of the act. ठीक है, commencement of the act. The law also made the provision that the priority is given to the disabled children and physically and financially incapable children. ठीक है, otherwise they will never be adopted. ठीक है, तो ये सब conditions है। दूसरा, इसमें थोड़े से amendments भी करे गए हैं इस एक्ट में। Why? Because in our country there are so many child care institutions, amongst which 90% are run by NGOs, but 39% are not registered. They also find out that 20% of the child care institutions are not even set up. 3/5 of them do not have any toilet, 1/10 do not have drinking water, and 15% don't have provision for separate beds or diet units. ठीक है, ये तो रिपोर्ट आई थी, लेकिन आपको समझना है कि इससे क्या होगा। सारी जो पावर है with respect to the child care centers and the application of Juvenile Justice Act within a district is now given to district magistrate. ठीक है, that the district magistrate, including the ADM, to issue adoption orders for the speedy disposal of cases. The DMs should have the power for smooth implementation and synergized effect. They can be registered, the child care institution can be registered only after the recommendation of district magistrate, and the DM can evaluate the district child protection unit, child welfare committees, child care institutions, juvenile justice was specialized juvenile police units. Okay, these are the provisions that can be used. यहाँ तक समझ में आ गया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में। अब इसमें अब प्रोवाइड किया गया व्हाट आर चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज। तो चाइल्ड वेलफेयर कमिटीज आर दोज कमिटीज वेयर दीज फॉलोइंग मेंबर्स आर नॉट अलाउड। फर्स्ट थिंग, दीज मेंबर्स आर नॉट अलाउड। बाकी सब अलाउड है, ये अलाउड नहीं है। बाकी आप किसी को भी अलाउ कर सकते हैं इन दीज कमिटी। कौन? अ पर्सन हु हैज अ रिकॉर्ड ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, अ पर्सन हु इज कन्विक्टेड of an offense which relates to moral turpitude, a person who is dismissed from government service or removed, a person who is the part of the management of child care institution within the district. इनके अलावा आप चाइल्ड केयर कमेटी में मेंबर्स रख सकते हैं। ठीक है, रिमूवल कैसे होगा? The removal can be done after an inquiry. After an inquiry, if a member has failed to attend these child welfare committees for 3 months, or 3/4 of that sitting in that year, they can be removed. The bill also wants that offences related to these acts should be tried in the child court. Okay. The bill also provides that any person aggrieved can make an appeal before the commissioner within 30 days from the passage of an order. And offenses are divided into 3 categories: petty offenses, serious offenses, and heinous offenses. ठीक है, जो maximum sentence है, it is more than 3 years, and
no minimum sentence is there, such things will be treated as serious offenses. ठीक है, where the sentence is more than 7 years but there is no minimum offense, that will be treated as serious offenses. उससे ज़्यादा होता है 7 years से above, that will be considered as heinous offense. Where the sentence is more than for 7 years minimum, that is considered as a heinous offense. Okay. New guidelines are also there. Guidelines are also there for the adoption. क्योंकि because of the unfortunate COVID times, ये सब चीजें न्यूज में थी. ठीक है, ये सब चीजें न्यूज में थी, है ना. तो इसीलिए हमें इस बारे में पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. वेरी गुड. कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है इंडिया? वेरी गुड. बताओ फिर, पता होना चाहिए तो बताइए. तो बंद कर देते, पढ़ना लो, गलती से शेयर किया नहीं अभी तक आपको. हाँ, वेरी गुड. कौन कौन अडॉप्ट कर सकता है इंडिया में? Who all can adopt a child? ये क्वेश्चन आ सकता है, मैं पूरी जोर से लग रहा है ये आ सकता है. Who all can adopt a child in India? चलो ऑप्शन देते हैं, हाँ या ना बताइए. ठीक है. मैरिड कपल, यस. अनमैरिड कपल, यस या नो? कब कंफ्यूजन है? वेरी गुड. अनमैरिड मेल, No. अनमैरिड फीमेल, नो. वेरी गुड. ट्रांसजेंडर, तो अब हम देखते हैं. अच्छा, क्या अनमैरिड फीमेल ने अडॉप्ट कर सकती है? तो सुष्मिता सेन के बच्चे इलीगली अडॉप्टेड है. ओ माय गॉड, ओ माय गॉड. सर एनी पर्सन, एनी इंडियन सिटीजन हु इज वेल टू अर्न, वो अडॉप्ट कर सकते हैं थ्रू प्रोसीजर जो कि उनको सब चीजें प्रोवाइड करा सकें. ठीक है, इसका मतलब फॉरेनर्स नहीं अडॉप्ट कर सकते? क्या सर? मतलब फॉरेनर्स नहीं अडॉप्ट कर सकते? एनी इंडियन नहीं, एनी इंडियन सिटीजन हु इज अ फॉरेनर आल्सो. बताओ. रात भर पढ़ाई करिए कल, है? हाँ सर. हाँ, पता लग रहा है, पता लग रहा है रात भर. इसीलिए रात में नहीं पढ़ना चाहिए पेपर के आसपास. नहीं सर, वो सुबह से हॉस्पिटल में था तो क्या हो उसको गया? उस वजह से सब मम्मी ठीक? की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी. अभी ठीक है? यस सर. ठीक है. हाँ जी. तो कौन कौन कर सकता? क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं है? आ सकता है ना क्वेश्चन. वेरी गुड. अनमैरिड मेल कर सकता है अडॉप्ट? देख लो, सोच लो, करण जौहर के बच्चे अच्छे हैं कि नहीं है? सर कर सकते हैं बट डिस्करेज भी तो करते हैं ना पुलिस अथॉरिटीज और सब. नहीं, सर क्यों डिस्कस थ्रू करते? प्रोसीजर से ना, जो भी वेल कर रहा है अपने लाइफ में, मतलब जिसके पास भी है वो कर अब सकता है जिसके पास अडॉप्ट. नहीं है, एनी, अगर बी अगर उसे लगता एनीवन. है, अगर किसी को नहीं लगता सर, वो कर ही नहीं सकता ना, वो प्रोवाइड ही नहीं कर सकता है कुछ, नहीं, तो उसे उसका लगता है कि स्टेटस अगर देखना हमारे पड़ता ऊपर है. जिम्मेदारी आएगी, सोसाइटी तो ये सोचती है ना, नहीं बच्चों पे ऐसा तो नहीं, जिम्मेदारी नहीं आएगी. नहीं सर, ऐसा इतना तो थोड़ी ना लिबरल हो सकता है. बेटा, इसमें कोई इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होता, पहली चीज. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं होता है. लेकिन एनी पर्सन हु इज मैरिड, क्या न्यूली मैरिड कपल अडॉप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं. इफ बताओ. दे आर अबव 25 ऑफ एज. इफ दे आर अबव 25 एज. लेकिन शादी तो 25-21 साल की उम्र में हो जाती है. 4 साल वेट करेंगे, है ना. मेल तो 21 के लिए अलाउड है मैरिज के लिए, और फीमेल इज 18, है ना. फिर कैसे करेंगे? फीमेल का 7 साल वेट करेंगे, है ना. सोसाइटी तो कहेगी इतने दिन में तुम अपनी लाइन लगा दोगे, तुम क्या डाउट के चक्कर में पड़ो, इतने में तो तुम आधी टीम तैयार हो जाएगी, है ना. ऊपर वाला मेहरबान हो तो हो सकता है पूरी क्रिकेट टीम भी तैयार कर दो, 2-4 ट्विंस हो गए तो, है ना. है कि नहीं? तो मैरिड कपल अडॉप्ट कर सकता है कि नहीं अडॉप्ट कर सकता? पहला सवाल. न्यूली मैरिड, नहीं सर, अगर न्यूली मैरिड है कर तो सकता है बट सर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे. हाँ, तो न्यूली मैरिड नहीं कर सकते. मिनिमम 2 इयर्स ऑफ स्टेबल मैरिज चाहिए. मान लो आपने न्यूली मैरिड है, बच्चा अडॉप्ट कर लिया और 1 साल बाद लगा कि हमारी तो बन नहीं रही है, फिर
बच्चे की तो दिक्कत होगी ना, बच्चा तो कह रहा है यार बेकार ही हम यहाँ है, हमारा साल But बेकार कर sir, दिया आपने, है ना। सर डिवोर्स तो कभी भी ले सकते हैं ना, मतलब फिर उसमें क्या होगा? स्टेबल मैरिज, 2 years ऑफ स्टेबल मैरिज चाहिए। सर थर्ड ईयर में पहले डिवोर्स हुआ प्रूव, तो पहले तो प्रूव करे स्टेबल मैरिज है, बाद में तो कितना भी खराब हो जाए वो तो किसी को नहीं पता ना। हो सकता है बच्चे की वजह से ही हो जाए, तुमने मेरे बच्चे को क्यों मारोगे, तुम्हारा बच्चा थोड़ी है, हो सकता है इस चक्कर में हो। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, ये एक बहुत बड़ा रीजन रहता है, ये मजाक नहीं है, सच में ऐसा है। बच्चों की वजह से बहुत फैमिलीज आपस में लड़ती हैं, ठीक है। उनमें से मान लीजिए कपल है, एक कपल को सोचता है बच्चों को पीटने का हक है, और दूसरा पार्टनर सोचता है कि नहीं बिल्कुल नहीं है, फिर उस चीज में भी फैमिली, लेकिन उससे पहले, बच्चे से पहले अगर स्टेबल नहीं है फैमिली, तो इट्स बेटर दैट फैमिली शुड नॉट बी अडॉप्टिंग अ चाइल्ड, बिकॉज इवेंचुअली दे विल एंड अप इन अ फेल्ड मैरिज, लीगली सर और सोशली। एज क्राइटेरिया नहीं है सर? नहीं एज कट, मतलब 18 प्लस तो मिनिमम हो, मिनिमम 18 प्लस हो, ठीक है। तो मैरिड कपल कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विद एटलीस्ट 2 years ऑफ, एटलीस्ट 2 years ऑफ अ स्टेबल मैरिज, ठीक है। Person can adopt a child irrespective of the marital status. A person can adopt a child irrespective of the marital status. A man, single man, however, cannot adopt a girl child. A single man cannot adopt a girl child. A single woman can adopt either of the child, either of the gender. Okay. The couples who are having more than 2 children, can they adopt a child? A couple having more than 2 children, can they adopt a child? Yes, they can. ठीक है, more than 2 children yes, more than 3 children no. 3 children is the criteria. More than 3 children is not a criteria that they cannot adopt, but still there are restriction. But still there are restrictions. मतलब exceptions. Means a couple who has 3 children, but they wanted to adopt a child with certain physical limitations, they can. If a child is in special need, they can adopt that child. If that child is of a relative, they can adopt that child. They can adopt if that the child is of the step, or means the step parent. If they are the step parent, then also they can adopt the child. Okay, if the couple is the step parent, amongst them one of them is the step parent, they can adopt the child. ठीक है। बट सर ये रेस्ट्रिक्शन क्यों है, जब मतलब इतने ज्यादा ऑफन्स हैं कंट्री में, तो अलाउड होना चाहिए ना 3 के आगे भी? नहीं 3 के आगे फिर ये होगा, ऐसे बहुत सारे कपल्स भी है ना जिनके पास बच्चे नहीं है, ऐसे बहुत सारे कपल्स भी है ना जिनके पास बच्चे नहीं है, ये भी तो है ना। एंड इट इज ऑलवेज बेटर that couple who does not have a child or who have one child, they will give more importance to the child adopted. What if they are adopting a child to take care of these 3 children, फिर ये भी तो है कि चलो 3 बच्चों के, इन बच्चों का ख्याल रखने के लिए एक और बच्चा अडॉप्ट कर लेते हैं, करते हैं लोग, ये सच में होता है ऐसा, ठीक है, ऐसा होता है। नॉट एवरी कपल हु आर अडॉप्टिंग अ चाइल्ड इज गुड। हम बाय डिफॉल्ट जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, बाय डिफॉल्ट जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो कौन कौन अडॉप्ट कर सकते हैं, समझ में आ गया। अब इन्होंने क्या नए रूल्स निकाले, इफ अ कपल हु हैज अडॉप्टेड अ चाइल्ड एंड दैट अडॉप्शन हैज नॉट कंप्लीटेड 2 years, तो उन्हें, if they are leaving the country, they have to give their arrival and departure information to the authorities, ठीक है, wherever they are going, or the authority within the country, they have to tell. If they are settling abroad, they have to tell the diplomatic mission, it means the embassy there. Otherwise, for example, if the child has left the country, the child is not under the protection of the Indian rules, and they have not intimated the country in which that
they are taking the child, then child cannot have the protection under that country's rules also. Hmm. So that child will be without protection. So that is why it is too much of importance that is needed. समझ में आ गया? नए रूल समझ में आ गए? Very good. Basic समझ में आया? You understand how the questions can be framed? How the questions can be framed? Very good. Adoption is regulated under which act in India? बता दो. Adoption is regulated under which act in India? बहुत सारे एक्ट पढ़ ली, बहुत सारी चीजें पढ़ ली. क्वेश्चन का आंसर. CARA. But beta, CARA is not an act. CARA is an authority. सर इसी का कुछ होगा, चाइल्ड अडॉप्शन एक्ट वगैरह. चलो इसका आंसर दो. The child adoption in India is regulated under the Juvenile Justice Act. नहीं है. अब बताओ. Child regulation in India is regulated under Juvenile Justice Act. अब बताओ. जल्दी बताओ. सर इसी के अंडर होगा, क्योंकि और कहीं तो फिर स्कोप नहीं है ना. क्वेश्चन अच्छा है कि नहीं बता, ये बताओ. बाकी सब पढ़ लिया. Adoption regulations come under that act. Adoption regulation. So adoption regulations. देखो बेटा लिखा है ना, स्टैट्यूटरी बॉडी है. कौन से स्टैट्यूट के अंदर बनी है? यही तो क्वेश्चन बन सकता है. If it is a statutory body, it is under some act. और हम कौन से एक्ट के अंदर पढ़ रहे हैं? देखो हेडिंग. कभी कभी हम सब पढ़ लेते हैं, सिर्फ हेडिंग देखना भूल जाते हैं. है ना? वेरी गुड. ये भी जुवेनाइल जस्टिस, ये भी जुवेनाइल जस्टिस, और ये भी जुवेनाइल जस्टिस. और ये अडॉप्शन जो अमेंडमेंट रेगुलेशंस आए, ये भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर प्रोविजंस के रहे हैं. ठीक है. सोचो सब पढ़ लिया, बस ये नहीं पढ़ा, कितना बुरा लगता. और बाद में जब हम पेपर का डिस्कशन करते हैं, देखो हेडिंग यहाँ लिखा था. हम भी तो बोलेंगे ना, हमारे क्वेश्चन से 120 क्वेश्चन आए हमारे नोट से, है ना. 100 इस साल, 20 अगले साल के लिए उन्होंने रिजर्व रख ली. कितने अच्छे नोट्स कैसे बन गए. ऐसी तो रहता है पेपर के बाद, हर कोई ऐसी तो बताता है. हमारे नोट से 120 क्वेश्चन आए, जो 20 रिजर्व क्वेश्चंस थे वो भी हमारे नोट से हैं. अरे ऐसे है, मजाक नहीं कर रहे. आप प्री का पेपर देके आएंगे, आपको शाम को मिलेगा 100 क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम आवर नोट्स. ठीक है. चाहे आप इनसाइट्स देख लीजिए, हमारे क्वेश्चन पेपर के इनसाइट्स. ठीक है. अब फिर उसमें कैसे बताते हैं, देखो हमने पढ़ाया था आपको स्टैट्यूटरी बॉडीज, है ना. अब उन्होंने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया, तो हो गया ना हमारे क्वेश्चन सिलेबस से. स्टैट्यूटरी बॉडी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में. देखो हमने आपको पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन, आए ना कॉन्स्टिट्यूशन से 5 क्वेश्चन. सर जुवेनाइल क्या मतलब होता है? जुवेनाइल बेटा लीगली जो 18 साल से छोटा. लीगली 18 साल से छोटा. इट इज अ लीगल टर्म. ठीक है. इट इज अ लीगल टर्म. और जुवेनाइल जो अपराधी होता है, उसको बोलते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंट. ठीक है. जो जुवेनाइल अपराधी होता है उसको बोलते हैं जुवेनाइल डिलिक्वेंट. सर लीगल टर्म्स में जुवेनाइल और चाइल्ड के बीच में क्या डिफरेंस है? चाइल्ड इज अ सोशल टर्म. चाइल्ड इज अ सोशल टर्म. जुवेनाइल इज अ लीगल टर्म. The definition of child varies. The definition of child varies for the social protection. That is for the child labor, prohibition of child labor, for the benefits under the National Food Security Act, for the benefits under the protection of child under the or against the sexual offenses. ठीक है. इन सब में डेफिनेशन वेरी करती है. चाइल्ड की एक पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं. जुवेनाइल इज अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 18 for all legal purposes. For all legal purposes. 16 to 18 में अब डिपेंड करता है as per the crimes that a juvenile will be treated as an adult above 16 or not. ये है
द क्रिमिनल ऑफेंसेस एक्ट 2013 के बेसिस पे, क्रिमिनल लॉज एक्ट। ओके, बहुत कंफ्यूजिंग है, ये सब चीजें रहती हैं, ठीक है, इसीलिए क्वेश्चंस इनसे आते हैं। ओके, कोई दिक्कत, कोई टेंशन, कोई मेंशन? बुढ़ा पेंशन तो बिल्कुल नहीं है ना। वेरी गुड, चले आगे। चलिए अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, अडोलेसेंट, अडोलेसेंट बेटा वही चाइल्ड और अडोलेसेंट में। चलो क्वेश्चन पूछ ही लेते हैं हम। आप लोगों ने सोशल इश्यूज नहीं पढ़ा है ना, आप लोगों ने सोशल इश्यूज नहीं पढ़ा है, और पॉलिटी तो पढ़ा होगा काफी लोगों ने, हमसे पॉलिटी भी पढ़ाते हैं ये, है ना, पॉलिटी भी पढ़ाते हैं कि चाइल्ड क्या होता है। अच्छा, चाइल्ड कौन सी एज वाले बच्चे को चाइल्ड, चलो छोड़ो, बाकी सब छोड़ो, कौन सी एज के बच्चों को बोलेंगे चाइल्ड? चाइल्ड So as the law determines. फिर भी बिलो 15, बिलो 15, प्यूबर्टी एज वाले जो अटेन कर जाते हैं वो 15 ऊपर से चले जाते बिलो हैं, 15। वाले बेटा Child. पुबर्टी चेक कैसे करोगे तुम? चलो तुम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पुबर्टी कैसे चेक करोगे? सर बाय एज बाय एज, एंड द सिम्टम्स ऑफ। सिम्टम्स कैसे चेक करोगे प्यूबर्टी, बताओ बताओ ना, कैसे चेक करेंगे प्यूबर्टी? वो तो मेडिकल है ना, सोशली कैसे चेक करोगे? अब ये तो है नहीं डॉक्टर बैठा रखा है, डॉक्टर चेक करके बताओ प्यूबर्टी आई कि नहीं आई। कुछ बट सर कुछ ब्रूटल हो जाता है तो फिर चेक करवाना ही पड़ेगा ना। नहीं, प्यूबर्टी से कोई दिक्कत नहीं है, मान लो किसी को प्यूबर्टी है 40 साल की उम्र में, ये थोड़ी कि 40 साल तक उसे सर बच्चा ऐसा नहीं मानेंगे। होता सर। नहीं नहीं, होता है, बिल्कुल होता है। प्यूबर्टी की कोई एज नहीं है बेटा, प्यूबर्टी की कोई एज नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोगों को 6 क्लास में ही बियर्ड आ जाती है ना। सर बट इतना वेरी नहीं करता है ना। नहीं नहीं करता है, 30 ऐसे बहुत लोग हैं जिनको 30 तक प्रॉपर्टी हिट नहीं करती है। कुछ लोग जो होते हैं जिनको डाउन सिंड्रोम होता है उनको कभी कभी पॉवर्टी नहीं आती है। हजबुल्ला कौन? So वो रशियन वो बच्चा है ना जो 18 अच्छा साल हाँ, का है। तो उसको सिंड्रोम है ना, सिंड्रोम है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम वालों को आती नहीं कभी पॉवर्टी, प्यूबर्टी। ऑटिज्म वालों को कभी नहीं आती है, दे आर स्टेराइल। तो आप, इसका मतलब ये नहीं है ना कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं करेंगे। अच्छा वो हाँ, हमें पहले में लगा था छोटा बच्चा इतना जिम करता है, हमें डर था कि इसको हाइट वाइट ना रुक जाए इसकी, कि बचपन में सोचता, फिर पता लगा कि ही इज नॉट अ चाइल्ड, ही हैज सर्टेन डिसऑर्डर। ठीक है बेटा, प्यूबर्टी प्यूबर्टी ये सब मेडिकल है, ठीक है, लॉ मेडिकल चीजें नहीं मानता है। और कोई बोले कि नहीं हम तो जो है अभी बचपन है माफ कर दो, कभी देखा जेल में कोई क्रिमिनल हुआ कि जी बच्चा है छोड़ो माफ कर दो, जज ने बोला ठीक है दोबारा मत करना, उठक बैठक लगाओ। हाँ, मान लो मन किसी ने बैंक लूटा, अरे कुछ नहीं, वो बचपन में खेलता था बैंक लूटा गेम, इसने सोचा कि ये थ्योरी है प्रैक्टिकल करके देखते हैं, बच्चा है जी माफ कर दो। है? बताओ, कर सकते हैं कैसा? आप बताओ नो सर। फिर। है ना, तो इसीलिए हम लोगों को डेफिनेशन समझनी होगी। चाइल्ड एक्ट टू एक्ट चेंज होता है, चाइल्ड एक्ट टू एक्ट चेंज। चाइल्ड लेबर की बात है तो बिलो 14 चाइल्ड, अबव 18 अडल्ट। 14 से 18 वाले को क्या कहूँ? 14 से 18 वाले को क्या कहोगे? एडल्ट। बस हो गया ना, एडोलसेंट की डेफिनेशन क्लियर। 14 से 18 वाले को एडोलसेंट कहोगे, हो गई डेफिनेशन क्लियर। ठीक है, समझ में आ गया? तो हर चीज के लिए एक डेफिनेशन है जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। चले आगे। अच्छा, अब एक एक्ट आया था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट,
उस एक्ट में सिंपल बोला है कि 15 अगस्त से पहले पहले जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जिसका है उसी का माना जाएगा, 15 अगस्त के बाद आप चेंज नहीं कर, ठीक है। नाउ देयर इज अ पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट विच इज सेइंग अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर तो अगर कोई भी आर्बिट्री इरेशनल अगर कोई ऑक्यूपेशन हो जाएगी, ठीक है, ऑक्यूपेशन हो जाएगी तो आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? एंड देयर वर सो मेनी थिंग्स व्हिच हैपेंड, आप ऐसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते कट ऑफ डेट? बस इसी के लिए एक पिटीशन है, उसी पिटीशन की वजह से दिस इज इन न्यूज, ठीक है, दिस इज इन न्यूज। समझे? एक बार रीडिंग लगाइए इसकी, एक बार आप रीडिंग लगाइए तो आपको समझ में आएगा। सर 1947 अगस्त की बात हो रही है ना? हाँ बेटा, 15 अगस्त 1947। तो उसके बाद तो आर्बिट्री ऑक्यूपेशन होगा तो उसको भी इलीगली मानेंगे। उसको इलीगल मानेंगे तभी तो जो है ये न्यूज में है कि आपने कुछ चीजों, बेटा आप देखो थोड़ा सा इसमें हर चीज में कुछ ना कुछ रहता है। उसमें क्या होता है कि अगर उसका स्टेटस इस लॉ के इनेक्ट करने से पहले, इस लॉ ये 1991 में आया था, इसके इनेक्ट होने से पहले इफ इट इज अंडर लिटिगेशन तो आप उसको केस को डील करेंगे। जैसे अयोध्या केस था, इट वॉज अंडर लिटिगेशन, तो उन्होंने बोला कि ये तो अंडर लिटिगेशन है तो इसमें हम ये नहीं बोलेंगे कि उससे पहले जिसका क्लेम था उसी करें, ठीक है, तो इसलिए डील होता। इसी के बाद, इसी एक्ट के बाद फिर आपने देखा है कि कुछ हुआ था 6 दिसंबर 1992 में, ठीक है, इट वॉज आफ्टर दिस एक्ट ओनली, ठीक है। ये किसी लिए था कि कोई भी नया ग्रुप पुराने किसी की मॉन्यूमेंट या किसी भी रिलीजियस स्ट्रक्चर को ऑक्यूपाई ना करे, ये उसी से बचने के लिए था, ठीक है, उसी चीज से बचने के लिए था। ओके, समझ में आया? सर तो ऐसे तो और भी केसेस डिले हो रहे होंगे। हाँ बहुत सारे हैं, बहुत सारे केसेस हैं, वो मेन से पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है इसमें, ठीक है। वेरी गुड। फीचर्स क्या है एक्ट के? वही कि जो 50 अगस्त 1947 से पहले था। सर हाँ जी, हाँ जी बोलिए। सर एडोलेसेंट फैक्ट्री एक्ट 1948 से अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन अलग दिया है। हाँ उसने क्या बोला है? फिर जो कंप्लीट कर लिए 15 इयर्स और लेस देन 18 इयर्स। जो कंप्लीट कर लिया 15 इयर्स और लेस देन 18 इयर्स। कौन सा एक्ट? 1988 ना? 18 इयर्स। हाँ नहीं, 1988 1948 1940 नहीं, उसके बाद तो ये मिनिमम वेजेस एक्ट होगा। नहीं, फैक्ट्री एक्ट सर। फैक्ट्री एक्ट, तो बेटा फैक्ट्री एक्ट में वो जो है ना वो 15 स्टार्ट कर लिए हैं उनको एडोलेसेंट माना, 14 से पहले, क्योंकि चाइल्ड लेबर 14 से ऊपर वाले को चाइल्ड लेबर अलाउड है बट नॉट इन हजार्डस, तो वरना फिर 14 से 15 वाला कहाँ जाएगा? फ्रॉम 15 टू 18 होगा एडोलेसेंट, देखिए। हाँ सर, उसमें यही दिया है फैक्ट्री एक्ट में कि 15 टू 18। हाँ तो हम बोले ना 14 तक चाइल्ड होता है, हम भी तो यही बोल रहे हैं 14 तक चाइल्ड, उसके बाद एडोलेसेंट, 18 से पहले 14 के बाद, ठीक है। सर ये क्वेश्चन ईपीएफओ में आया था, उसमें लिखा है कि एक बार क्वेश्चन जो शेयर कर दो ना, कंप्लीट कर चुके हैं 15। एक बार क्वेश्चन शेयर कर दो, एक बार आप क्वेश्चन शेयर करो तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना? ओके सर। हाँ जी। क्वेश्चन इनका देख लेते हैं फिर आगे चलते हैं। हाँ जितने आप इतने नोटिस के एक्सेप्शंस क्या है, एक बार पढ़िए, एक्सेप्शंस पढ़िए, क्या क्या एक्सेप्शंस है इसके अंदर।
क्वेश्चन है, ग्रुप पे हम शेयर कर देते हैं। सोशल इशू ऐसा टॉपिक है, सबसे चटपटा टॉपिक है यूपीएससी प्रिपरेशन। ठीक है, सोशल इशू सबसे चटपटा टॉपिक है। ठीक है, ग्रुप पे सेंड कर दीजिए। हम आ गए ना ग्रुप पे। हाँ देखिए, हु इज एन एडोलेसेंट who has completed 15 years of age but is less than 18, who is less than 18, who has completed 14 years of age but is less than, सी आंसर होगा ना बेटा इसका, who has completed 14 years of age and but is less than 18। बट सर मैंने अभी फैक्ट्री एक जैसे गूगल पर सर्च किया, उसमें देखा रहा आंसर ए होना चाहिए। एक मिनट देख लेते हैं, हम भी देख लेते हैं। Completed his 15th years of age but has not completed 18th years of age। अभी 15th 18th लिखा है, has got 14 years of age। देख लेंगे इसको एक बार, आइडेंटिफाई कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है 15th। वो वाला कंफ्यूजन है, पता है इसमें क्या है कि 15 में लग गया है या 15 का हो गया है। ठीक है, वो वाला जो कंफ्यूजन हो, क्योंकि उसमें एक्ट में लिखा है द पर्सन हु हैज कंप्लीटेड द 15th ईयर ऑफ एज बट हैज नॉट कंप्लीटेड 18th ईयर, मतलब 18 से कम। वही हाँ, ये वही वाला वही कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन है सर कि हाँ, समझ में नहीं आया कि ए होगा कि 15 में लग गया है या 15 का हो गया है पूरा, ये कंफ्यूजन है। ठीक है, देख लेंगे इसको, शेयर कर लेंगे। हाँ जी, इसमें एक्ट में जो प्रोविजन, स्पेशल प्रोविजन एक्ट है ना, एक्सेप्शंस जो है इसके अंदर क्या क्या है अंडर दिस एक्ट। तो एक्सेशन पहला हमने बता दिया, जिसके अंदर प्रोसीडिंग्स बिगिन हो गई है। ठीक है, प्रोसीडिंग बिगिन हो गई। इट वाज नॉट अप्लाई टू, देखिए, एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स दैट आर कवर्ड बाय आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एक्ट। ठीक है, आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स एक्ट। A suit that has been finally settled or disposed of, any dispute that has been settled by party or conversion of any place that took place by acquiescence before the act commenced। ठीक है, तो या तो आर्कियोलॉजिकल साइट, या फिर कोई डिस्प्यूट जो रिजॉल्व हो गया, या फिर जो डिस्प्यूट जो पार्टीज ने अपने आपस में रिजॉल्व कर लिया, वो इस एक्ट के बाहर। ठीक है, ये एक्ट के बाहर है। तो ये इसीलिए न्यूज में, इसके लिए हमने वीडियो बनाई हुई, एक बार देख लीजिएगा, एडोब्रिज पर वीडियो है। ठीक है, एक बार आप रीडिंग लगाइए फीचर्स, क्योंकि आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। एक बार रीडिंग लगा लीजिए।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक चीज पूछनी थी। हाँ, सोर्स बेटा बोलिए। अपील और केस में क्या डिफरेंस होगा? आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। हेलो, अब आ रही है सर? नहीं आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए। अब आ रही है सर? बोलिए बोलिए, कोशिश कर रहे हैं, बहुत धीरे आ रही है। बस सूट अपील और केस में क्या डिफरेंस है सर? सूट अपील, एंड केस में? सूट फाइल होता है फॉर एन अपील दैट इज बीइंग मेड, और जब वो एक्सेप्ट हो जाता है तो केस बन जाता है। ठीक है, सूट फाइल होता है फॉर एन अपील दैट इज मेड, and when it is when that suit is accepted, that will be the case. Okay, चलिए, अब नेशनल कमीशन फॉर अलाइड हेल्थ केयर प्रोविजंस इज बीइंग established. ठीक है, नाउ दिस एक्ट विल establish a commission that will regulate and standardize the education and the practice of allied and healthcare professional. For that, we need to understand what is allied and healthcare professional. It includes associate, technician, or technologist trained to support the diagnosis or treatment of any illness, disease, injury, or impairment. Such professionals should have obtained a degree or diploma as per the bill. It means जो भी डॉक्टर्स को सपोर्ट करने का जो स्टाफ होता है, टेक्निकली particularly the technical staff for the diagnosis or treatment, they should be having a degree or diploma as per this bill. They will be considered as allied health professional. A healthcare professional includes a scientist, therapist, or any professional who studies, advises, researches, supervises, provides preventive, curative, rehabilitative, therapeutic, or promotional health services. They should have obtained a degree. For healthcare professional, diploma will not work. Only degree. Allied and healthcare professionals that are mentioned in the bill include those working in the life sciences, trauma, burn care, surgical, anesthesia, and any other related physiotherapies or nutrition science. This is the definition. Now, how it will help? It will help to standardize the healthcare system in our country, and it will also help in providing employment to the people. बस इसीलिए है, ठीक है? Very good. Now there is an initiative called as Tapas initiative. किस लिए है ये Tapas initiative? बताइए, Tapas initiative सुना है? नहीं है. Very good. अगर आपको अपनी क्लास में कभी कभी कुछ दिखाया जाए, वीडियो दिखाया जाए, क्या उसकी नॉलेज, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी? है ना? बस यही इस इनिशिएटिव का पार्ट है. तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने एक ऑनलाइन पोर्टल इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड एज तपस. The full form is Training for Augmenting Productivity and Services. Training for Augmenting Productivity and Services. It is an initiative of National Institute of Social Defense. It is to provide access to lectures by subject experts, materials, and many more, which will supplement the physical classroom without compromising the quality. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, उनके लेक्चर सुनते हैं तो उनसे पता है उनको महीने में 4 लाख रुपए पहुंच रहे हैं, इतना लोग सुन रहे हैं. आज उन्होंने बोला है कि उनके लेक्चर्स इतने फेमस हो गए हैं दैट ही इज जनरेटिंग रेवेन्यू ऑफ 4 लाख रुपीस पर मंथ थ्रू यूट्यूब. So this is what is this can be made as a part of the Tapas initiative कि आप वो लेक्चर्स तपस पोर्टल पे भी देख सकते हैं. ठीक है, it will help you and get your knowledge. Actually part of the massive open online course. ठीक है, massive open online course which can use the advantages of these lectures and discussions. ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो, टेक्स्ट, सेल्फ असेसमेंट डिस्कशन कर सकते हैं. तपस इनिशिएटिव एजुकेशन के लिए. ठीक है, वेरी गुड. पीएम दक्ष स्कीम किस लिए है? एवर हर्ड ऑफ दिस पीएम दक्ष स्कीम? पीएम दक्ष स्कीम is दक्षता एंड कौशलता संपन्न हितग्राही. ठीक है, and there is also a mobile app. This is for what? This is for the upskilling or reskilling of having entrepreneurship development program and long-term programming. Why? For those who are part of the government training institutions. The eligibility of this scheme is for those who are the part of scheduled caste,
other backward classes, economically backward classes, tribal, sanitation workers, including waste pickers, manual scavenger, transgender, and the other similar categories. So this is for providing the skills for these target groups. It is implemented by National Scheduled Caste Finance and Development Corporation, National Backward Classes Finance and Development Corporation, नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. ध्यान से देखिएगा, इसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का जो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इज नॉट इंक्लूडेड. ठीक है, ये क्वेश्चन है. व्हाट विल दे डू? दे विल प्रोवाइड कंसेशनल लोन्स एंड आल्सो प्रोवाइड फ्री ट्रेनिंग फॉर स्किल डेवलपमेंट. तो दक्ष स्कीम इज फॉर स्किल डेवलपमेंट फॉर अ टारगेट ग्रुप. ओके, वेरी गुड. जन शिक्षण संस्थान एक स्कीम लॉन्च हुई थी 1967. ठीक है, जन शिक्षण संस्थान पहले बोला जाता था श्रमिक विद्यापीठ. इट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1960. इन्होंने क्या किया है, इन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड किया है टू द ट्राइबल एरियाज इन केरला. ठीक है, इन द ट्राइबल एरियाज इन केरला. So this scheme was named as Shramik Vidyapeeth, renamed as JSS, Jan Shikshan Sansthan. It was earlier part of Ministry of Education. Now it is part of Ministry of Skill Development. It is imparting vocational skills at the doorstep of beneficiary at minimum cost and infrastructure. ठीक है, ये सिर्फ मेरे वोकेशनल स्किल प्रोवाइड नहीं करते हैं, लाइफ स्किल भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, नॉन फॉर्मल मोड में होता है. ठीक है, नॉन फॉर्मल मोड में होता है. And priority is given to women, scheduled caste, scheduled tribe, minorities, and other backward section of the society. It is 100% implemented through NGOs with 100% grant from Government of India. The JSS, Jan Shikshan Sansthan, are regulated under the Society Registration Act, and they are managed by the Board of Management approved by the Government of India. Guidelines क्या रहती हैं? To provide the National Skill Qualification Framework under the National Skill Development Mission. It is to provide decentralization skill system. They will provide online certification. Basically, it is for training. It is for training under the skill development mission. Okay. तो अगर क्वेश्चन आता है जन शिक्षण संस्थान was established under the National Skill Development Mission, true or false? So false. They are now part of the skill development mission, but they were not established through it. Okay. Very good. आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद. मतलब आत्मनिर्भर मतलब खुद से, नारी शक्ति मतलब विमेन से बातचीत. बस जो विमेन जो खुद से अपना काम कर रही है उनके साथ बातचीत करी है, ये संवाद था. ये क्या अप्लाई कर रहा है? आपके जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंदर, उसको अप्लाई करने के लिए था. तो आपको हमने साथ साथ प्रोवाइड की है इंफॉर्मेशन. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन क्या है, तो किसके लिए है? रूरल के एरियाज के लिए है. ठीक है, रूरल एरियाज के लिए है. इसमें विमेन भी बेनिफिशियरी होती है. ठीक है, अर्लियर इसका नाम था स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. अर्लियर इट वाज कॉल्ड एज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना. महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, ये किस लिए है? फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ विमेन फार्मर्स. इन्होंने क्या बोला है कि दैट अंडर द नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन देयर इज अ sub program, that is Mahila Kisan Shakti-karan Pariyojana. Under this at least 30% of the expenditure for the agriculture scheme should be incurred on women. ठीक है, 30% of the expenditure under the scheme should be incurred on women. ठीक है, this is what is provided. संवाद इनिशिएटिव किस लिए है? वेरी गुड, ये बता दो, क्वेश्चन आ जाएगा. संवाद इनिशिएटिव रिलेटेड टू व्हाट? संवाद इनिशिएटिव रिलेटेड टू व्हाट? बताइए. संवाद इनिशिएटिव रिलेटेड टू व्हाट? नहीं बताएंगे. वेरी गुड. रिलेटेड टू चिल्ड्रन इन वल्नरेबल सर्कमस्टेंसेस. संवाद बातचीत के लिए नहीं, बहुत अच्छे समझिएगा. दिस इनिशिएटिव इज फॉर providing support, advocacy and mental health interventions for children in vulnerable circumstances and distress. For children in vulnerable circumstances and distress. This initiative is funded by Ministry of Women and Child Development. ठीक है, it is funded by Ministry of Women and Child Development.
and it is led by NIMHAMS Institute. Initiative किस लिए है? To support children in distress. क्वेश्चन अगर आएगा तो इतनी डिटेल में नहीं है, बस ये आएगा संवाद इनिशिएटिव रिलेटेड टू व्हाट. तो नाउ यू नो रिलेटेड टू व्हाट. वेरी गुड. वन धन कंज्यूमर वन धन प्रोड्यूसर कंपनीज. सो जन धन योजना के साथ साथ एक और स्कीम थी वन धन. वन धन इज फॉर द ट्राइबल इनिशिएटिव. ठीक है, इट इज फॉर द ट्राइबल लिंक entrepreneurship. So Ministry of Tribal Affairs has established one then producer companies in the 27 states with priority to the aspirational districts. अब ये क्या है? This is a market linked tribal entrepreneurship program. Tribal linked entrepreneurship program. This initiative is to generate the forest wealth for tribals. It is launched as a part of Pradhan Mantri Wan Dhan Yojana. It is implemented by TriFed. Now, what is the aim? To tap the traditional knowledge using technology, converting them into the viable economic activity, to promote the collective strength of tribals, and also to set up minor forest produce centric multi-purpose वन धन विकास केंद्र. पहले इससे क्या होगा? नॉलेज यूज करें, इकोनॉमी जनरेट करें, स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस करें और लोगों को वो जो प्रोड्यूस बना रहे हैं उसका बेनिफिट भी दें. दीज आर द बेनिफिट्स. ठीक है. व्हाट इज ट्राइफेड? यहाँ प्रोवाइड किया गया है कि एक नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द मार्केटिंग ऑफ द ट्राइबल प्रोडक्ट्स. एक इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर ट्रेनिंग प्रोग्राम. सो ये प्रोग्राम है for through the Education Ministry and Tribal Affairs Ministry, Education Ministry and Tribal Affairs Ministry, for a training program for school teachers. It is a training program for school teachers. क्या है इसमें? कि training of 50,000 school teachers will be provided on innovation, entrepreneurship, design thinking, product development, and idea generation. The training will be delivered in online mode, and this initiative will be part of the innovation cell of Ministry of Education. Okay, it will be part of the innovation cell of Ministry of Education. Okay, Ministry of Education. सर निषाद जो स्कीम था सर, वो भी स्कीम इसी तरह था, आपने करवाया था सर निषाद. कौन सा स्कीम? निषाद बेटा ये वो सबके लिए है, ये सिर्फ इनोवेशन के लिए है. वो टीचर की जो टीचिंग डेवलपमेंट के लिए थी वो आएगी, वो भी अभी. ठीक है, वो टीचिंग डेवलपमेंट के लिए थी, इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. ठीक है, तो सो दैट दे विल हैव स्कूल इनोवेशन एम्बेसडर. तो हर स्कूल में कैसा एम्बेसडर बनाएंगे जिससे वो इनोवेशन को प्रमोट करें. ये इनोवेशन तो वो तो प्रिंसिपल के लिए था ना? हाँ जी, तो प्रिंसिपल्स के लिए था. आ गई, अभी आ जाते. कौन सी स्कीम बता रहे हैं? निषाद स्कीम बता रहे हैं ना सर. एनसीईआरटी बेस्ड जो था, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर था, और जिसमें हेडमास्टर एंड द टीचर्स को डेवलपमेंट के ये रहा ना निष्ठा. एक तो निषाद नहीं थी, निष्ठा थी ना. ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स. यही तो था. ठीक है, निष्ठा, निषाद नहीं, निष्ठा. ये बात ध्यान रखना, दिस इज अंडर दी ट्राइबल अफेयर्स ऑल्सो. इट इज नॉट ओनली एजुकेशन मिनिस्ट्री इनिशिएटिव, इट इज ऑल्सो इनिशिएटिव ऑफ ट्राइबल मिनिस्ट्री. ठीक है. इनोवेशन सेल इज अ पार्ट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री, अंडर विच they want to foster the culture of innovation in all higher educational institutions. It is established at AICT premises. अब स्माइल स्कीम किस लिए है? It is a center sector scheme for those who are engaged in begging so that they can be rehabilitated. So this is scheme for the beggars and transgenders inclusive. Okay, this scheme is including all the schemes for beggars and transgenders. Okay, so this scheme provides the use of existing shelter homes for the rehabilitation. If the
shelter homes are not available, then new dedicated shelter homes will be introduced. It will be including rehabilitation through medical facilities, counseling, documentation. It will be implemented through the decentralized system. This scheme will be acting in the cities on the pilot basis, so that they can identify what are the limitations and what are the advantages. Then there is Garib Nawaz employment scheme. This is, who was Garib Nawaz? Who was Garib Nawaz? Who was called as Garib Nawaz? Very good. Ajmer Sharif, you have heard about Ajmer Sharif? It is the Dargah of whom? Which saint? Ajmer Sharif is the Dargah of which saint? Very good. UPSC question आ चुके हैं ये. Sir, Moinuddin Chishti. Very good. Moinuddin Chishti was also called as the Garib Nawaz. अगर आपने कुछ नहीं हुआ तो आपने अगर जोधा अकबर भी देखी होती तो भी इस क्वेश्चन का आंसर दे देते. अगर जोधा अकबर भी आपने देखी होती तो भी आप इसका आंसर दे देते. ख्वाजा मेरे ख्वाजा गाना तभी तो आया था जब वो गरीब नवाज की दरगाह पे जा रहे थे. सर बॉम्बे वाली कौन सी थी? हाँ जी, बॉम्बे वाली. क्या बॉम्बे वाली? सर एक सेंट थे ना बॉम्बे में से भी तो. वो अलग है, वो अलग है. गरीब नवाज बोलते हैं मोइनुद्दीन चिश्ती को. शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, सेंट मोइनुद्दीन चिश्ती को बोलते थे. तो यानी कि this scheme is named after a minority saint, the saint belonging to minority religion. तो ये किसका पार्ट हुआ? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का. माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का किस लिए? फॉर द एम्प्लॉयमेंट. ठीक है. इट इज पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स under the Maulana Azad Education Foundation. Aim is to provide short-term job-oriented skill development courses to minority youth in order to enable them skill-based employment. As per the norms, it will be applicable or it will be implemented through Ministry of Skill Development and through program implementation agencies. ठीक है. तो गरीब नवाज स्कीम, बस स्कीम के नाम और कहां से आते हैं वही समझते रहिए, है ना. बस आज यही रुकेंगे. समाज शिक्षा से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है. छोटू छोटू देख लेते हैं इतने और. एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन ये भी इंपॉर्टेंट बाद में करेंगे इसको. स्टार्स प्रोजेक्ट किस लिए है? स्टार्स प्रोजेक्ट जो है, इट इज एन इनिशिएटिव फॉर स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स. यानी कि दिस इज एन इनिशिएटिव which will provide the teaching and learning and results for the states. Okay, it is an initiative that will identify various states and improving their quality of education. Okay, the project cost will be shared between World Bank and the participating states, and this scheme is in the form of a program for results. The reforms will be initiated at the state level, and this scheme aims to focus upon e-Vidya foundational learning and numeracy mission and national curricular and pedagogical framework for early childhood care and education as a part of Atmanirbhar Bharat Abhiyan. Stars related to education, याद रखिएगा. स्टार्स प्रोजेक्ट is related to education in states. बस ये याद रखना है, इतना ज्यादा याद नहीं रखना. And it is part of the new education policy. Prime Minister Research Fellowship, it is a type of fellowship for the students who are either in the final year of their BTech or integrated MTech or MSc. It means for the students under having the science background, engineering or science background, who want to pursue PhD, okay, who want to pursue PhD, then they will be given fellowship under the Prime Minister Research Fellowship. Under this, 70,000 per month will be given for first 2 years, 75,000 per month for third year, and 80,000 per month in the fourth and fifth year as per the scheme. The grant will also be provided for the research. Now, students from all the recognized universities, are eligible for this fellowship. पहले क्या था? Only these particular institutions students were allowed. The GATE score requirement has been reduced from 750 to 600. Now the students can have direct entry or lateral entry. Lateral entry means
those who are pursuing PhD and have completed 12 months or 24 months, they can also be part of this scheme. NITs which appear in the top 25 institutions in the ranking can become of this part of this scheme. ठीक है, इतना रुकते हैं. Rest we will continue tomorrow. ठीक है, rest we will continue tomorrow. Any doubt if you have? सर ये वर्ल्ड बैंक क्या क्या करता है, कहीं की पॉइंट्स मिल सकते हैं? बेटा वर्ल्ड बैंक फंडिंग के लिए है पर्टिकुलरली. 5 मिनट में कॉल रखा. Particularly for funding. World Bank is particularly for funding. ये तो इकोनॉमिक्स पढ़ा ही था, क्या क्या काम होते हैं इसके. 5 टाइप के इंस्टीट्यूशन. नहीं सर वो तो पढ़ लिया था, बट कुछ याद रहने में थोड़ा सा ऐसे तो एक बार देखना चाह रहे थे. जितना याद है वो रिवाइज करो बेटा, वो तो रिवाइज जितना करोगे उतना. ठीक है, चलो नेक्स्ट विल कंटिन्यू. मंडे या ट्यूसडे हम देखते हैं. ठीक है, मंडे या ट्यूसडे में, क्योंकि वीकेंड आप पढ़िए अच्छे से, ये हम शेयर कर देंगे. मंडे या ट्यूसडे हम आपको बता देंगे. ठीक है, श्योरली मंडे लेंगे कि ट्यूसडे लेंगे. ठीक है, So we are not having class tomorrow. नहीं बेटा वीकेंड पे आप लोग रिवाइज करिए जितना आप लोगों ने पढ़ा है. बेसिक पे फोकस करने का टाइम आ गया. Okay, sir. ठीक है, क्योंकि हमारी अब मैक्सिमम 3 to 4 क्लासेस आर लेफ्ट. ठीक है, तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जितने आपके डाउट्स हो आप इकट्ठे करके पूछते रहें बीच बीच में. कुछ ऐसी चीजें जो चाहते हैं क्विकली रिवाइज करा दें या कुछ टॉपिक बताना, तो ये भी हो जाएगा. ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच. विल कंटिन्यू मंडे और ट्यूसडे. आई लेट यू.